جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ مریم کی آیت 77 پر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یعنی آخرت میں مال اور اولاد سے نوازا جائے گا لازماً؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یعنی آخرت میں بھی مال اور دولت سے، مال اور اولاد سے نوازا جائے گا لازماً؟ یہ وہی مضمون ہے جسے ہم سورہ الکہف میں 2 آدمیوں کی گفتگو کے تحت پڑھ چکے ہیں، اور یہ روایت بھی بیان کی جا چکی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت خباب ابن ارت کی یہ روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض، کیونکہ یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، تو ان کا کچھ قرض عاص ابن وائل کے اوپر تھا۔ یہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لیے گئے۔ اس نے کہا میں تو تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور انکار کا معاملہ نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مر کر زندہ نہ ہو جاؤ۔ عاص ابن وائل نے کہا اچھا، کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ اگر ایسا ہے تو تمہارا قرض بھی میں اسی وقت چکا دوں گا، کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال، دولت اور اولاد ہوگی۔ یعنی اس نے کہا چاہے تم مجھے کتنا ہی بدکار کہتے رہو اور عذاب سے ڈراتے رہو، میں تو تم سے زیادہ خوشحال ہوں، اور میری زندگی میں آخر تمہیں یہ کیسے نظر آ رہا ہے کہ میں خدا کے غضب کا شکار ہوں؟ دیکھیے یہ ایک شخص کا واقعہ ہے، عاص ابن وائل کا، اور یہ خیال صرف اسی کے نہیں تھے، یعنی عاص ابن وائل کے ہی نہیں تھے، بلکہ مکے کے کفار کے بڑے بڑے سردار اس جیسے خیالات میں مبتلا تھے۔ اس آیت کے پیش نظر یہ عقیدہ قریش مکہ کے حوالے سے دہرایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، چنانچہ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح سے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ اگلی آیت 78 میں اللہ کی طرف سے ان کے اس نظریے کا جواب دیا گیا ہے۔ چلتے ہیں آیت 78 کی طرف۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب سے مطلع ہو چکا ہے؟ یعنی کیا اس کے پاس غیب کی خبر آ چکی ہے؟ اطلع الغیب، کیا وہ غیب سے مطلع ہو چکا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا وہ غیب سے مطلع ہو چکا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس نظریے کا اور اس خیال کا جواب ہے کیا وہ غیب سے مطلع ہو چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے، آخر ان کے اس دعووں کی دلیل کیا ہے؟ کیا اسے غیب کا علم ہے یا اس نے اللہ سے کوئی قول اور قرار لے رکھا ہے؟ اگلی آیت 79 میں سختی کے ساتھ تردید کی ہے، کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں تاکہ اس سے پوری طرح سے جواب دہی کی جا سکے۔
वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसके लिए हम अजाब को बढ़ाते चले जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि अत्तलअल गैबा अम इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा, क्या वो गैब से मुत्तला हो चुका है या उसने रहमान से कोई अहद ले रखा है। अगली आयत 79 में, कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूल, हरगिज़ नहीं, हम लिख रहे हैं जो कुछ वो कह रहा है। यानी हम ऐसे शख्स की एक एक बात लिख रहे हैं ताकि क़यामत के दिन कल उससे पूरी तरह से जवाबदही की जा सके। वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसके लिए हम अजाब को बढ़ाते ही चले जाएंगे। ये आयत 79 थी। आगे चलते हैं आयत 80 की तरफ। वनरिथुहु मा यक़ूल वयअतीना फरदा, और हम वारिस होंगे इस सब कुछ के जिसका वो जिक्र कर रहा है, और वो आएगा हमारे पास अकेला ही। वयअतीना फरदा, और वो आएगा हमारे पास तन्हा ही यानी अकेला ही। वनरिसुहु मा यक़ूलु वयअतीना फरदा, और हम वारिस होंगे इस सब कुछ के जिसका वो जिक्र कर रहा है, और वो आएगा हमारे पास अकेला ही, यानी उसका माल और मता तो हमारी विरासत में आ जाएगा, हम उसके वारिस बन जाएंगे। और जब उसे हमारी अदालत में पेश करने के लिए लाया जाएगा तो वो बिल्कुल तन्हा होगा। माल, दौलत, खादिम, हश्म व मर्तबा, कबीला और रिश्तेदारों में से कोई भी उसके साथ हरगिज नहीं होगा। ये आयत 80 थी। आगे चलते हैं आयत 81 की तरफ। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, और उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद ताकि वो उनके लिए मददगार साबित हों, मददगार बने। और उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद ताकि वो इनके लिए मददगार हों, यानी उनका ख्याल ये है कि उनके ये माबूद उनके लिए पुष्टपनाह होंगे और उन्हें अल्लाह के अजाब से छुड़ा लेंगे। इस आयत में असल में इज़्ज़ा का लफ्ज़ लाया गया है, और ये इज़्ज़ा ऐन से है, इज़्ज़ा यानी वो माबूद उनके लिए इज्जत का सबब होंगे। इन्होंने ये माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि कल क़यामत के दिन ये माबूद उनके लिए इज्जत का सबब बने, उनके पुष्ट पनाह हों। तो ये आयत इज़्ज़ा यानी वो माबूद उनके लिए इज्जत का सबब होंगे। इज़्ज़ा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में ये माना रखता है कि कोई शख्स उसकी हिमायत में हो और उसकी वजह से कोई मुखालिफ, कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। तो ये अरबी में इसके माना ये आते हैं कि कोई शख्स उसकी हिमायत में हो और उसकी हिमायत की वजह से कोई मुखालिफ या कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। अगली आयत 82 में भी इसी बात का जिक्र है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। देखिए ये लफ्ज़ कल्ला यहाँ 2 बार आ गया, दूसरी बार आया है। कल्ला हरगिज़ नहीं, यानी ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? सयकफुरून बिइबादतिहिम, वो तो इन लोगों की इबादत का इनकार कर देंगे। यानी जो माबूदान बातिला उन्होंने बनाए हुए थे, जिनकी वो इबादत में लगे हुए थे और ये ख्याल कर रहे थे कि ये क़यामत के दिन हमारे पुष्टपना होंगे, तो वो माबूद क्या करेंगे? वो तो खुद इन लोगों की इबादत का इनकार कर देंगे। यहाँ कुर्तुबी ने ये बात भी नकल की है कि जिन माबूदों की ये इबादत इसलिए करते थे कि मैदान महशर में ये उनके मददगार होंगे, इसके बरअक्स, इसके उल्टा ये माबूदान बातिला, ये माबूद उनके दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बोलने की ताकत अता कर देगा और ये बोलेंगे, या अल्लाह इनको अजाब और सज़ा दीजिए क्योंकि इन्होंने तुझको छोड़कर हमें माबूद बना लिया था, हमारी इबादत में
मगन हो गए थे। इस आयत 82 के अगले फिक्रे से ये बात कुर्तुबी की पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। अगला फिक्रा क्या है इस आयत का? वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और वहाँ वो उन लोगों के मुखालिफ हो जाएंगे, यानी ये माबूदान बातिला इन लोगों के मुखालिफ हो जाएंगे। तो ये आयत 82 थी। आगे चलते हैं आयत 83 की तरफ। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। देखिए पहले जो आया था लफ्ज़ वो इज़्ज़ा आया था और वो ऐन से था, और यहाँ जो दूसरा लफ्ज़ अज़्ज़ा आया है ये अलिफ से है और अलिफ के ज़बर के साथ है। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। क्या आपने देखा नहीं कि हम कुफ्र करने वालों पर शयातीन को भेजते रहते हैं और वो उन्हें खूब खूब उकसाते रहते हैं। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। क्या आपने उन्हें देखा नहीं कि हम कुफ्र करने वालों पर शयातीन को भेजते रहते हैं और वो उन्हें खूब खूब उकसाते रहते हैं। मतलब ये है कि ऐसे लोग खुद शयातीन की दोस्ती इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए हम शयातीन को उन पर मुस्तकिल तौर पर मुसल्लत कर देते हैं ताकि वो उन्हें गुनाहों पर और सरकशी पर मुसलसल उभारते रहें और वो अपनी सरकशी और नाफरमानी में हद से आगे निकल जाएं। आयत में अज़्ज़ा का जो लफ्ज़ आया है, अज़्ज़ा के माना आते हैं, ये अलिफ से है जैसा कि अभी बताया गया। अज़्ज़ा के माना पूरी ताकत और तदबीर के ज़रिए किसी शख्स को किसी काम के लिए सिर्फ आमादा करने के ही नहीं आते हैं बल्कि उसको मजबूर कर देने के भी आते हैं। अज़्ज़ा के जो माना है पूरी ताकत और तदबीर के ज़रिए से किसी शख्स को किसी काम के लिए आमादा ही नहीं बल्कि मजबूर कर देने के आते हैं। अब आयत का मतलब इस माना के लिहाज से ये हुआ कि ये शयातीन इनको बुरे आमाल पर उभारते हैं और उनके आमाल को मुज़य्यन कर देते हैं और उनकी खूबियाँ उनके दिल पर मुसल्लत कर देते हैं। बिल आखिर अपनी खराबियाँ इन लोगों को नज़र नहीं आती। ये आयत 83 थी। आगे चलते हैं आयत 84 की तरफ। इस आयत 84 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया है। फला ताजल अलैहिम, तो आप उनके खिलाफ फैसले के लिए जल्दी ना कीजिए। फला ताजल अलैहिम, तो आप उनके खिलाफ फैसले के लिए जल्दी ना करें, जल्दी ना कीजिए। फला ताजल अलैहिम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके खिलाफ फैसले के लिए जल्दी ना करें। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके मुतवज्जह करके कहा जा रहा है कि आप ऐसा ख्याल दिल में न लाएं कि इन कुफ्फार ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है, इसलिए अब उनका फैसला ही कर देना चाहिए या उन पर अजाब भेज देना ही चाहिए। देखिए बात दरअसल ये है, और हम इससे पहले भी जो मक्की सूरतें हमारे सामने से गुजरी हैं इनमें हम मक्के के कुफ्फार की साजिशों को और उनकी मुखालिफाना सरगर्मियों को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाने और आपके मिशन को ख़राब करने के लिए कितनी सरगर्मियाँ किया करते थे। मगर इस सब के बावजूद यहाँ कहा जा रहा है कि अभी आप उनके बारे में फैसले के लिए जल्दबाजी से काम ना लें और उनके बारे में फैसले के सिलसिले में जल्दी ना करें। आगे इसी आयत में है अगला फिक्रा जो इस आयत का आखिर है। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, ये फिक्रा बड़ा ही अहम है। अहम तो सारे ही फिक्रे हैं इन आयत के, लेकिन ये इस माना के से अहम है क्योंकि इस बात की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम इनकी पूरी
पूरी गिनती कर रहे हैं। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम उनकी पूरी पूरी गिनती कर रहे हैं। यानी गोया अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ हर काम का एक कायदा कानून और निज़ामुल औक़ात के तहत ही तय होता है। चुनांचे इस बारे में भी फैसला हम अपनी हिकमत के मुताबिक ही करेंगे। उनका एक एक अमल लिखा जा रहा है, उनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है और इसी रिकॉर्ड के मुताबिक उनसे जवाबदही होगी और बिल आखिर उनके करतूतों की सज़ा उन्हें मिलकर रहेगी। तो आयत का फिक्र ये है, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम उनकी पूरी पूरी गिनती कर रहे हैं। तफसीर इब्न कसीर ने इस फिक्रे के तहत ये बात नकल की है कि हम उनके साथ, यानी जो लोग इस्लाम के मुखालिफिन हैं और वो चाहते हैं कि इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत ख़त्म हो जाए और उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो उनके बारे में इस आयत के फिक्रे के तहत इब्न कसीर कहते हैं कि हम उनके साल, महीने, दिन और वक्त शुमार कर रहे हैं और उनके सांस भी हमारे गिने हुए हैं। देखिए ये फिक्रा है, और उनके साथ भी, और उनके सांस जो हम सांस लेते हैं और हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार इन्हीं सांसों पर है, और उनके साथ भी हमारे गिने हुए हैं। मुकर्ररा वक्त पूरे होते ही वो अजाबों में फंस जाएंगे। ये इब्न कसीर ने इसकी वजाहत की है कि यानी हम उनके साल, महीने और दिन और वक्त शुमार कर रहे हैं और उनके सांस भी हमारे गिने हुए हैं। मुकर्ररा वक्त पूरा होते ही वो अजाबों में फंस जाएंगे। तफसीर कुर्तुबी में है कि खलीफा मामून रशीद ने एक मरतबा इसी सूरह मरियम की तिलावत की और जब वो इस आयत पर पहुँचे तो हाज़रीन मजलिस जो उलमा और फुक़हा थे, यानी उनकी मजलिस में जो उलमा, फुज़ला और फुक़हा मौजूद थे, उनमें से इब्न सम्माक जो कि एक मशहूर फ़क़ीह हैं, उनकी तरफ इशारा करके मामून रशीद ने कहा कि इस आयत के बारे में आप कुछ कहें। यानी उन्होंने इस आयत के बारे में कुछ अर्ज़ करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अर्ज़ किया, यानी इब्न सम्माक ने कहा कि जब हमारी सांस भी गिने हुए हैं, उन पर ज़्यादती नहीं हो सकती, तो ये तो किस कदर जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए बाज़ दानिशमंद कहते हैं, यानी तेरी ज़िंदगी के सांस गिने हुए हैं, जब एक सांस गुज़रता है तो तेरी ज़िंदगी का एक जुज़ कम हो जाता है। और कहा जाता है कि एक सेहतमंद आदमी दिन रात में 24,000 या 25,000 के आसपास सांस लेता है। और तफसीर रूहुल मानी ने बाज़ हज़रात के हवाले से ये भी नकल किया है, यानी दुनिया और उसकी लज्जत पर वो शख्स कैसे मगन रह सकता है जिसके अल्फाज और सांस गिने जा रहे हों। ये तफसीर रूहुल मानी में है, यानी दुनिया और उसकी लज्जत पर वो शख्स कैसे मगन रह सकता है जिनके अल्फाज और सांस गिने जा रहे हों। और तफसीर उस्मानी ने इस आयत के तहत ये नकल किया है कि उनकी एक एक सांस, एक एक लम्हा और एक एक अमल हमारे यहाँ गिना जा रहा है। अदना से अदना हरकत भी हमारे इल्मी दफ्तर से बाहर नहीं हो सकती। तमाम उम्र के आमाल एक एक करके उनके सामने रख दिए जाएंगे। ये तफसीर उस्मानी में है इस आयत के तहत कि उनकी एक एक सांस, एक एक लम्हा और एक एक अमल हमारे यहाँ गिना जा रहा है। अदना से अदना हरकत भी हमारे इल्मी दफ्तर से बाहर नहीं हो सकती। तमाम उम्र के आमाल एक एक करके उनके सामने रख दिए जाएंगे। तो ये तो हैं वो लोग जो इस तरह के नज़रियात रखते थे कि क्योंकि हमें दुनिया के अंदर माल और दौलत से नवाजा गया है, तो आखिरत में भी हमें माल और दौलत से नवाजा गया है, और क्योंकि दुनिया में हमें माल और दौलत दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह भी हमसे
راضی اور خوش ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ان آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کے مطابق اب جنتی لوگوں کا بیان کیا جائے گا، اور یہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ کل سورہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔